Hello students, in today's lecture we are going to proceed with exercise 14.2 question 1, which is based on identity which we have studied in last lecture. Okay, that is known as factorization of perfect square trinomial. उसको परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका फैक्टराइजेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर. ओके, so first of all let us see the identities which we have studied or which we are going to use in this question, that is a square plus 2ab plus b square. This kind of perfect square trinomial will be factorized as a plus b the whole square. Okay, what we should identify for the same, that is first and last, these both terms should be perfect square and their square roots must be multiplied by 2 for the middle term. Okay, then that kind of trinomial will be factorized as a plus b the whole square. Like same way we have negative middle term a square minus 2ab plus b square, then that will be factorized as a minus b the whole square. Okay, so accordingly let us proceed with question 1, first sum. So it is a square plus 8a plus 16. A square plus 8a plus 16. Here we can observe this first term a square is perfect square, its square root will be a, we can say that. Okay, then last term that is 16, also perfect square, its square root will be 4 or is a square of 4, we can say that, plus, so plus now 2 a and 4, their square roots, first and last terms. Okay, so 2 4s are 8a, middle term is satisfying, we can say that. So this will be factorized as a plus b the whole square. So a plus 4 the whole square. Okay, then let us have a second one. P square minus 10p plus 25. So here we can observe first term is p square. It's a perfect square. It is a square of p, we can say that. Last term 25 is also a perfect square. It's a square of 5. Okay, or square root of 25 will be 5. Then minus, for middle term, these both square roots must be multiplied by 2. Then 5 2s are 10p. Middle term is very fine. Then we can say that this will be factorized as a minus b the whole square. Okay, a square minus 2ab plus b square. Okay, so it will be factorized as a minus b. So p minus 5 the whole square. Okay, so let us have a third one. 25m square plus 30m plus 9. Okay, so we can observe both first and last both terms are perfect square. It's a square of 5m. Then plus it's a square of 3. Then 2 into product of this square roots 5m and 3. Let us have a cross check. 5 2 5s are 10, 3s are 30m. It is there. So middle term is very fine. So a square plus 2ab plus b square. A square plus 2ab plus b square. So factorization will be a plus b the whole square. In the place of a we have 5m. In the place of b we have 3. So this will be factorized as a 5m plus 3 the whole square. Okay. Then fourth one, 49y square plus 84yz
plus 36z square. This kind of question is here. We can observe here also first and last both terms are perfect square. It is a square of 7y. Okay, square root of 49 will be 7. Square root of y square will be y. Then plus, as per the sign of middle term. Then here 36z square. So 36 is a square of 6, we can say that, and z. So 6z whole square. Okay, so let us have a middle term 2 multiplied by this square roots. So from here 7y and from here 6z. Okay, 2 6 are 12, 12 7s are 84 yz, 84 yz. Middle term is very fine, we can say that. So it will be a plus b the whole square, 7y plus 6z the whole square. Okay, so likewise we have to apply the identity in this type of question. Once again I am repeating the things. How can we identify that we have to use this identity? Then we have to check for first and last term in this type of trinomial or in this type of question. If first and last term are perfect square, okay, if first and last term are perfect square, then you can have a cross check of middle term by multiplying square roots of first and last term with 2. Okay, if middle term is very fine, then this will create a format of a square plus 2ab plus b square, or else a square minus 2ab plus b square, and will be factorized as a plus b the whole square or a minus b the whole square. Okay, so write down this in your notebook, then we will proceed with the fifth one. Okay, now let us proceed with fifth one. Four x square minus 8x plus 4. Okay, this type of question is there. Now here we can observe that first and last both terms are perfect square, but before that I have told you one thing, that you have to observe all three terms, and in case if you find any of the factor which is common in all these three terms, then first of all you have to factorize trinomial by taking that factor common. Okay, मैं क्या कह रहा हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तीनों टर्म को ऑब्जर्व करना होगा, और तीनों टर्म को ऑब्जर्व करके अगर आपको देखने को मिले कि तीनों में कोई भी फैक्टर कॉमन है तो उसको पहले आप कॉमन ले लो, उसके बाद आप क्या करो, आइडेंटिटी अप्लाई करके फैक्टराइजेशन करो. जैसे कि यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 2 8 होता है, और यहाँ पे भी 4 है, मतलब हम तीनों टर्म्स में से 4 कॉमन ले सकते हैं. तो ऑफकोर्स हम क्या करेंगे, पहले वो कॉमन ले लेंगे. तो ये आपको खास ध्यान में रखना है. तो देखो 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, 4 2 8, सो हियर इट विल बी 2x
and 4 ones are 4, 4 तो common, so we can say that 1 will be there. Now if we can observe, then here first term is perfect square, x का square है, last term is also perfect square, 1 itself is a perfect square number, then 4, here it is a square of x, then minus, then plus, 1 itself is a perfect square number, square of 1. So now 2 multiplied by both the square roots, this is x and this is 1. 2 ones are 2x है, यहाँ पे मिडल टर्म वेरीफाई हो रहा है, तो 4 बाहर एज इट इज रहेगा, ये फैक्टराइज हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, सो x माइनस 1 द होल स्क्वायर, लाइक दिस. ओके, तो ये आपका फिफ्थ सम हुआ. ठीक है, नाउ लेट अस हैव अ सिक्स्थ वन. 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर. Okay, 121b square minus 88bc plus 16c square. Here also these both terms are perfect square. We can find it's a square of 11b. Then minus, क्योंकि मिडल टर्म माइनस है तो यहाँ माइनस साइन आ ही जाता है, प्लस 16c स्क्वायर, तो ये किसका 4c का स्क्वायर है. Now both the square roots will be multiplied by 2 here in the middle term, and then we will cross check. So 2 11s are 22, 22 4s are 88 BC वेरीफाई हो रहा है, तो ये फॉर्मेट है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, तो फैक्टराइजेशन होगा a माइनस बी द होल स्क्वायर, सो 11b माइनस 4c द होल स्क्वायर. ओके, तो ये आप लिख लीजिए फिफ्थ एंड सिक्स्थ. फिर आगे हम देखते हैं सेवन्थ एंड एट्थ. Okay, now let us proceed with seventh. L plus m the whole square minus 4lm, इसे हमें फैक्टराइज करना है. बट बिफोर वी अप्लाई आइडेंटिटी हियर we have to expand this L plus m the whole square using this identity in the form of expansion. A plus b the whole square का expansion होता है a square plus 2ab plus b square. उस तरीके से हमें पहले इसको क्या करना पड़ेगा, expand करना पड़ेगा, फिर आगे कुछ बात बन सकती है हमारी. ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से पहले इसमें एक्सपांशन है. क्वेश्चन इस तरीके का है, तो a की जगह पे l है और b की जगह पे m है, तो हम इसका एक्सपांशन करते हैं. ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 4lm जो क्वेश्चन में था वो एज इट इज. लेट दिस बी गेट सिंप्लीफाइड, तो एल स्क्वायर प्लस 2lm एंड प्लस m स्क्वायर,
ये -4lm फिलहाल एज इट इज। ओके, तो ये हमने यहाँ पे इसको पहले आइडेंटिटी को उल्टे तरीके से यूज करके क्या किया, एक्सपांशन किया, 9th चैप्टर का कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो है वो दोनों हमारे लाइक टर्म्स है, तो ऑफकोर्स LM वाले लाइक टर्म्स है तो उनका सिंप्लीफिकेशन होगा, तो L² प्लस 2lm माइनस 4lm प्लस 2 माइनस 4 दैट विल बी -2, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होता है और बिगर नंबर का साइन आता है, तो 2 और 4 का सब्ट्रैक्शन होगा 2, बिगर नंबर है 4, वो नेगेटिव है इसलिए माइनस का साइन, सो -2lm प्लस ये m² था वो तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन हुआ है। ठीक है, अब ये जो है वो हमारा ये वाला आइडेंटिटी बन रहा है। अब देख सकते हो दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, ये l का स्क्वायर है माइनस ये m का स्क्वायर है, और 2 इधर से स्क्वायर रूट l और इधर से स्क्वायर रूट m, तो a² माइनस 2ab प्लस b², a की जगह पे l और b की जगह पे m है सिर्फ, तो वो फैक्टराइज होगा a माइनस बी यानी कि l माइनस m द होल स्क्वायर। ये हुआ पूरा इसका फैक्टराइजेशन। ओके, पहले जिस हिसाब से क्वेश्चन होता है उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो पहले एक्सपांशन चाहिए था तो हमने आइडेंटिटी अप्लाई किया रिस्पेक्टिव होल स्क्वायर वाला 9th चैप्टर का। ठीक है, तो उससे एक्सपांशन किया, लाइक टर्म्स का सिंप्लीफिकेशन किया, फिर पता चला कि ऑफकोर्स ये आगे फैक्टराइज हो सकता है यूजिंग आइडेंटिटी, तो हमने उसको फैक्टराइज किया आइडेंटिटी अप्लाई करके फाइनली। ओके, तो ये क्वेश्चन 7 आप लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन 8 देखें। ओके, अब देखते हैं 8th वन। a⁴ प्लस 2a² प्लस b⁴। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको यहाँ पे देखो तो ये ऑफकोर्स दोनों परफेक्ट स्क्वायर तो है ही, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये किसका स्क्वायर है, a⁴ है, मतलब कि ये a² का भी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं x² को x² से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनता है, मेरा x⁴ बनता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं सपोज मान लो कि y को y से मल्टीप्लाई करूँ तो y² बनता है, तो वैसे यहाँ पे सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ⁴ बन रहा है, सो वी कैन से दैट दिस x⁴ इज अ स्क्वायर ऑफ x², like same way a⁴ is a square of a², ये मिडल टर्म प्लस है इसलिए प्लस, b⁴ है तो b⁴ विल बी ऑल्सो अ स्क्वायर ऑफ b² का भी स्क्वायर, आप देख सकते हो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। फिर मिडल टर्म के लिए हमारा क्या रूल है, 2, फिर यहाँ जो भी स्क्वायर रूट में होता है वो इधर मल्टीप्लीकेशन में हम प्रेजेंट करते हैं, सेम वे यहाँ जो भी होता है वो भी, तो 2 इंटू a² इंटू b², तो दैट इज 2a² b²। तो ये हमारा पूरा आइडेंटिटी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b², a की जगह पे है a²,
और b की जगह पे है बी स्क्वायर, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर, यहाँ जो भी ब्रैकेट में है द होल स्क्वायर, मिडिल टर्म का साइन। तो ये इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा क्या था, अलग था, जिससे हमें फैक्टराइजेशन करना था। ओके, तो ये यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी यहाँ पे देख लिया, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। अगर मिडल टर्म हमारा नेगेटिव है तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर। बार बार हर एक लेक्चर में मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे वजह यही है कि ये फैक्टराइजेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या तो फिर एक्सपांशन के कॉन्सेप्ट्स जो 9th चैप्टर के हैं वो आगे जाके बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो अगर आपका ये जो बेस है वो वीक रहेगा तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए मेहरबानी करके आप क्या कीजिए कि जैसे कि 14.1 हमारा पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है, आपने अगर उसके लेक्चर्स सारे देख लिए, लेक्चर 1 2 3 4, ठीक है, और 5 भी हम कह सकते हैं, तो ये पांचों लेक्चर अगर आपने अब देख लिए हैं तो अब आप क्या कीजिए कि पूरा 14.1 आपकी नोटबुक में वापस से सॉल्व कीजिए खुद, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कहाँ पे कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, इसको आप अभी का होमवर्क समझना चाहो तो होमवर्क समझ लो, और खुद प्रैक्टिस समझना चाहो तो प्रैक्टिस समझ लो, बट करो खुद सॉल्व, ठीक है, सारे मेथड्स अप्लाई करो। और अगर कहीं पे भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो क्लियर कर दो, कोई भी कन्फ्यूजन रखो मत, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आगे जाके इतना डीपली ये एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने 8th में पढ़ा है, ये समझ के उसको फटाफट यूज़ किया जाएगा आगे के कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है, इनका यूज़ आएगा आगे जब हम मैथ्स पढ़ेंगे उसमें। फिर आपको ये सुनना पड़ेगा कि आपका बेस वीक है, ये सुनना ना पड़े, इससे बेटर है कि अभी आप आपका बेस फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आपको टाइम ड्यूरेशन मालूम ही है, आप मुझे उस टाइम पे कॉल करके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप खुद सॉल्व करें, खुद प्रैक्टिस करें लेक्चर्स देखने के बाद, ठीक है। सिर्फ नोट्स बना लिए बोर्ड पे से देखने से उससे ख़त्म हो गया वैसा नहीं है, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑफकोर्स हमें उसका स्टार्ट करना है रेफरेंस बुक्स में वगैरह में से, लेकिन उसके लिए हम प्रोसीड करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होने ज़रूरी है। तो एक आइडेंटिटी फिलहाल हमने क्लियर किया है, अभी भी कन्फ्यूजन हो आइडेंटिटी में या 14.1 के कोई भी कॉन्सेप्ट्स में तो वो आप पहले प्रायोरिटी में मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम दूसरे आइडेंटिटी से प्रोसीड करेंगे आगे, ठीक है। उसके बेसिस पे क्वेश्चन 2 है आपका एक्सरसाइज 14.2 का, वो उसके बाद देखेंगे, एंड सो ऑन वी विल प्रोसीड। ओके, सो कीपिंग दिस ऑल थिंग्स इन योर माइंड, आप उस हिसाब से आप प्रैक्टिस आपकी जारी रखना, ठीक है, एक्सरसाइज रिपीट करते रहना और प्रैक्टिस करते रहना। कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लेना, क्लियर कर लेना जो भी है डाउट आपके, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए आइडेंटिटी के साथ। टेक केयर, सी यू सून।